Hello kids, welcome in Gisha's Learning. Today we'll learn lesson number 2, My Early Home, which is given in the book of class 4, New Oxford Modern English. And this wonderful chapter is written by Anna Sewell. So be with me and let's start. Lesson number 2, My Early Home. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. तो ये कहता है ये हॉर्स का बच्चा, इसका नाम है डार्की. ये क्या कहता है कि मुझे जो पहली जगह अच्छी तरह से याद है वो है एक बड़ा रमणीय घास का मैदान जिसमें साफ पानी का एक तालाब था. Some shady trees lean over it and rushes and water lilies grew at the deep end. कुछ छायादार पेड़ उसके ऊपर से झुके हुए थे और गहरे सिरे पर सरस और कुमुदिनी भी उगी हुई थी. Over the hedge on one side we looked into a plough field and on the other we looked over a gate at master's house which stood by roadside. At the top of the meadow was a grove of fig trees and at the bottom a running brook overhung by a steep bank. So एक तरफ बाड़ के ऊपर से झुके हुए खेत दिखते थे और दूसरी तरफ क्या दिखता था, हमारे मालिक के घर के दरवाजे के ऊपर से जो सड़क के किनारे था उसके ऊपर से घास के मैदान के ऊपर देवदार के पेड़ों का एक झुरमुट था और उसके नीचे से एक नदी बहती थी. While I was young, I lived upon my mother's milk. जब भी मैं छोटा था तब मैं मेरे माँ के दूध पर जीता था. As I could not eat grass, क्योंकि मैं ग्रास नहीं खा सकता था. In the daytime, I ran by her side, and at night, I lay down close by her. दिन में मैं उसके पास दौड़ता था और रात में उसके पास ही लेट जाता था. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees. So जब गर्मी पड़ती थी तो हम तालाब के किनारे पेड़ के छाया में खड़े होते थे. And when it was cold, we had a nice warm shade near the grove. और जब ठंड पड़ती थी तो हमारे पास बाग के पास एक अच्छा सा गर्म शेड होता था. As soon as I old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. जैसे कि मैं घास खाने लायक हो गया, मैं बड़ा हो गया, मेरी माँ दिन पर काम पर जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी. There were 6 young colts in the meadow beside me. मेरे बगल में घास के मैदान में 6 छोटे घोड़े थे. They were older than I was. वो मुझसे बड़े थे. Some were nearly as large as grown-up horses. कुछ घोड़े बड़े घोड़ों जितने बड़े थे. I used to run with them and had a great fun. मैं उनके साथ दौड़ता था और खूब मज़ा करता था. We used to gallop all together round and round the field as hard as we could go. हम सब मिलकर मैदान में पूरी ताकत से दौड़ते थे. Sometimes we had rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop. तो ये कहता है कि हम सब मिलकर मैदान में पूरी ताकत से दौड़ते थे. कभी कभी हमारा खेल थोड़ा उधम मचाता था, मतलब हम लोग थोड़े मस्ती करते थे और अक्सर एक दूसरे को काटते थे और लात मारते थे. So one day, when there was a good deal of kicking, my mother winked to me to come to her. So एक दिन जब वहाँ खूब लाते घुसे चल रहे थे, हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, मेरी माँ ने मुझे हिनहिनाते हुए अपने पास बुला लिया. And then she said, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. तो उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो. The colts who lived here are very good colts, but they are cart horse colts. And of course they have not learned manners. वो क्या कहती है, यहाँ रहने वाले जो घोड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं,
लेकिन वे गाड़ी घोड़े जैसे हैं और जाहिर है उन्होंने शिष्टाचार मतलब मैनर्स नहीं सीखे. You have been well bred and well born. Your father has a great name in these parts, and your grandfather won the cup 2 years at the Newmarket races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew. And I think you have never seen me kick or bite. तो ये डार्की को समझाती है कि तुम्हें मतलब तुम अच्छे और सुसंस्कृत हो. तुम्हारे पिता का इस इलाके में बहुत नाम था. तुम्हारे दादा ने अल्सो मतलब ग्रैंडफादर ने भी 2 साल न्यू मार्केट रेस में कप जीता था. और तुम्हारी दादी का भी स्वभाव बहुत ही मीठा था. और मुझे लगता है कि तुमने मुझे भी कभी किसी को लात मारते या काटते नहीं देखा. तो ये वो डार्की को समझाती है उसकी माँ. आई होप you will grow up gentle and good and never learn bad ways. Do your work with a good will. Lift your feet up well when you trot and never bite or kick even in play. तो ये उसको समझाती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े होकर सौम्य और अच्छे बनोगे, कभी बुरे तरीके नहीं सीखोगे और अपना काम अच्छी इच्छा शक्ति से करोगे. दौड़ते समय अपने पैर अच्छी तरह ऊपर उठाओ और खेलते समय भी किसी को काटना नहीं और लात मारना नहीं है. ये अच्छे मैनर्स उसकी माँ अपने बेटे को यानी डार्की को सिखाती है. आई नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस. डार्की कहता है कि मैं अपनी मम्मी की सलाह कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूली. आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स and our master thought a great deal of her. Her name was Duchess, but often called her pet. But often he called her pet. तो उसने मतलब डार्की ने उसकी मम्मी ने जो सलाह दी थी उसने वो कभी नहीं भूला. और वो कहता है कि वो एक समझदार और बहुत नॉलेजेबल थी और हमारा मालिक भी उसका बहुत सम्मान करता था. उसकी मम्मी का नाम क्या था? डचेस. और वो जो उसका मालिक था वो अक्सर उसे मतलब उसकी मम्मी को क्या कहकर बुलाता था? पेट. ओके. आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन. हमारा जो मालिक था वो एक अच्छा और दयालु आदमी था. ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स. वह हमें अच्छा खाना और अच्छी रहने के लिए जगह देता था और अच्छी बातें करता था हमसे. He spoke as kindly to us as he did to his little children. वो हमसे उतनी ही विनम्रता से बात करता था जितना कि अपने छोटे बच्चों से. We were all fond of him and my mother loved him very much. हम उसे बहुत प्यार करते थे और मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी. When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. जब वह उसे फाटक पर देखती थी वो खुशी से हिनहिनाती और उसके पास दौड़ कर जाती. He would pat and stroke her and say. वो उसके पीठ पर थपथपाता और सहलाता और उससे पूछता Well, old pet, and how is your little darky? वो पूछता था अच्छा बूढ़ी पेट, और तुम्हारा छोटा डार्की कैसा है? I was a dull black, so he called me Darky. मैं थोड़ा सा डार्क था इसीलिए वो मुझे प्यार से डार्की बुलाता था. Then he would give me a piece of bread, which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. फिर उसके बाद वह मुझे एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा देता. वो बहुत स्वादिष्ट होता था और कभी कभी मेरी माँ के लिए गाजर भी लेके आता था. All the horses would come to him, but I think we were his favorites. सभी घोड़े उसके पास आते थे
लेकिन मुझे लगता है कि हम उसके पसंदीदा थे, मीन्स फेवरेट थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लिटिल गिग. मेरी माँ हमेशा उसे बाजार वाले दिन एक हल्के टमटम में शहर ले जाती थी. इसके बाद ओके, दो there was a ploughboy, Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. मतलब एक डिक नाम का प्लो बॉय था. वो क्या, जब कभी भी हमारे खेत में झाड़ियों से जामुन तोड़ता था, जब भी कभी आता था हमारे खेत के झाड़ियों से जामुन तोड़ता था. When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts, throwing stones and sticks at them to make them gallop. जब भी वह जी भरकर खा लेता था तो उसके बाद वो क्या करता था, बछड़ों के साथ मतलब हॉर्सेस के साथ थोड़ी मस्ती करता था, उन पर लाठियाँ फेंक कर या सरपट दौड़ाकर, मतलब गैलोप करता था. Okay, we had not much mind him, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us. हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट लेकिन कभी कभी क्या होता था, वो पत्थर आकर हमें चोट पहुंचा देता था. One day he was at this game and did not know that the master was the next field, but he was there watching what was going on. Over the hedge he jumped in the snap and catching Dick by the arm, he gave him such a fright as made him roar with surprise. So एक दिन वह डिक जो है वो ऐसे ही खेल रहा था, बछड़ों को मतलब हॉर्सेस को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, और उसे पता नहीं था कि मालिक उसके अगले खेत में ही है. लेकिन मालिक वहीं पर था, वो देख रहा था कि क्या चल रहा है. वह झट से बाड़ के ऊपर से कूदा और डिक को हाथ पकड़कर उसने इतना डरा दिया कि डिक भी आश्चर्य से दहाड़ उठा. Then, okay, as soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. जैसे ही हमने अपने मास्टर को देखा तो हम दौड़कर उसके पास चले गए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है. Bad boy, he said, bad boy, to chase the colts. This is not the first time nor the second, but it shall be the last. उसने कहा, बुरा लड़का बछड़ों को परेशान कर रहा है. यह पहली बार नहीं है, नहीं दूसरी बार है, लेकिन यह आखिरी बार होगा. There, take your money and go home. I shall not want you on my farm again. ये अपने पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें अपने खेतों में वापस से नहीं देखना है. So we never saw Dick anymore. Old Daniel, the man who looked after the horses, was just as gentle as our master. So we were well off. So इसलिए हमने डिक को वापस से यहाँ कभी नहीं देखा. घोड़ों को देखभाल जो करता था, मतलब घोड़ों की देखभाल करने वाला बूढ़ा डैनियल, वो हमें हमारे मालिक के जैसे ही हमें देखता था, विनम्रता से, और वो विनम्र था, इसीलिए हम खुशहाल थे. Thank you very much. This story is adapted from Black Beauty by Anna Sewell. Thank you.